Hello everyone. Today we will start first chapter of class 11 computer overview. Okay, computer system organization. ठीक है, computer overview we will start. Let's start the slide. What is computer? तो ये आप लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हो व्हाट इज कंप्यूटर। एक बेसिक सा आपने डेफिनेशन आज तक मुझे लगता है मे बी आपको याद होगा। कंप्यूटर is an electronic device which accept a data and process it and produce some output. Okay, कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो which will accept some data from you and process those data, and after processing the data it will produce some output. Several components of computer system are, बहुत सारे components होते हैं जिसके थ्रू we can give the data, process the data, and computer will give output to you by the some components. First component is input unit, CPU, memory unit, second is storage, and last one is output unit. We will discuss one by one. Okay, then first one is input unit, and this is the and means component of computer system. Diagrammatically we will representing as, okay, input unit. These suppose this is input unit, and here second is storage device, and CPU will perform the operation with the input data and process it, and finally gives the output in the output unit like monitor. Okay, so first of all we will discuss input unit. What is input unit? Means जो आपसे input लेता हो, जो computer device which accept some input from you is called input unit. This unit is used to provide data and instruction to computer. It converts data and instructions into binary form, which is understandable by the computer. Commonly used input devices are, okay, so input device usually provide data instructions to the computer. वो data और instructions computer को देता है. It converts the input data into binary form because all machine always understand in binary language. A binary language in the form of 0 and 1, 0 for high and 0 for low and 1 for high. Okay, which computer can be understand. Commonly used input devices are, first one is bar कार्ड रीडर। जो जैसे हम लोग मॉल, सपोज आप बिग बाजार वगैरह गए होगा या वी मार्ट गए या फिर मैक्स या जनरल आप जो भी शॉपिंग सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, बार कार्ड होता है। वो क्या करते हैं, बार कार्ड रीडर से उसको रीड करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बार कार्ड विल रिट्रीव फ्रॉम द बार कार्ड। ठीक है, बार कार्ड जो वहाँ पे आता है, कोई कुछ भी आप सिंपल मतलब कुछ भी लेते हो, कोई भी घर के लिए कोई भी आइटम, सपोज एक क्रीम भी आ रहा है तो उसमें देखना आजकल बार कार्ड आता है। तो वो जो बार कार्ड रीडर जो होता है उससे रीड करके उससे जो भी डेटा होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है। दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस बिकॉज जो भी डेटा आप इनपुट करते हो थ्रू द कीबोर्ड करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। लाइट पेन, लाइट पेन यूज करते हैं इन केस आपको जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, सपोज आई वांट टू हाईलाइट इनपुट यूनिट बाय पेन। जैसे आपके कॉपी पे नोट्स होता है ना, आप सपोज उसको क्लियर करने के लिए आपने इनपुट यूनिट के बैक ब्रैकेट में इनपुट डिवाइसेस का नाम आपने खुद से उसको नोट डाउन कर लिया। वैसे ही सिस्टम पे सपोज नोट्स
पहले से है, बट लाइट पेन जो होता है वो क्या करता है, उस नोट्स को कुछ भी आपको हाईलाइट वगैरह करना है तो आप उससे भी डेटा को इनपुट करा सकते हो, है ना। कीबोर्ड से तो नोट टाइप करके आपने नोट्स बना लिया, बट लाइट पेन से भी आप अपने हैंडराइटिंग में काम कर सकते हो, यू कैन से। कीबोर्ड तो वो जो आपका जो भी फॉन्ट सिलेक्टेड होगा, फॉन्ट का साइज सिलेक्टेड होगा, दैट विल दैट विल display on your screen, okay, but in your handwriting you want to write something, then you can use light pen, okay. Next input device is mouse. Mouse के through आप क्या करते हो, you can select any of icon, any of program, so this is also input device. ये क्या है, OMR sheet reader है, ठीक है। वो OMR शीट जो आप एग्जाम्स वगैरह देते हो उसमें 4 ऑप्शंस में से को जो भी ऑप्शन मतलब करेक्ट होता है वो आप क्या करते हो, उसको ब्लैक पेन या फिर पेंसिल से उसको डार्क करते हो, है ना। तो OMR शीट रीडर जो होता है वो क्या करता है, उस जो भी आपने आंसर किया है ना उसको रीड करके सिस्टम पे लोड करता है। सो दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, बिकॉज ये डेटा को OMR शीट से रीड करके सिस्टम में भेज रहा है, सो इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ये स्मार्ट कार्ड रीडर, ये तो आपने देखा ही होगा, आप जब आपके पास कैश नहीं होता है, आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो, कार्ड कार्ड स्वाइप कराते हो थ्रू द स्मार्ट कार्ड रीडर, ओके। तो ये देखो कीबोर्ड, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे क्या दिखाया था, कीबोर्ड, कीबोर्ड के लिए क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस टू टाइप अल्फाबेट, डिजिट्स एंड सिंबल्स। नेक्स्ट इज माउस, इट इज द माउस, it is the most commonly used pointing device to move cursor and select different software components, ठीक है। ये मोस्ट मतलब माउस कीबोर्ड तो जनरली यूज होता है, ये किसी भी मतलब सिस्टम सेटअप आप लोगे तो ये दो चीज तो आपको अवेलेबल मिलेगा ही, और अगर लैपटॉप है तो कीबोर्ड के बिना तो होगा नहीं ऑब्वियसली, ओके। नेक्स्ट इज लाइट पेन. A light pen is a pointing device that can be used to select anything, that can be selecting sorry that can be used to select anything on the computer screen by simply pointing at, or for drawing figures डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। लाइट पेन के थ्रू जैसे आप माउस के थ्रू सेलेक्ट करते हो तो वैसे ही लाइट पेन के थ्रू भी आप किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करके उसको ओपन करने का भी काम कर सकते हो, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड रिटन ड्राइंग वगैरह जो भी आपको करना है वो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे उसको टाइप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट रीडर, ठीक है। ये क्या है, जो मैंने ये वाला पिक्चर दिखाया था ना आपको, ये वाली ये है, ठीक है। क्या लिखा, एन OMR इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड विथ डार्क पेंसिल और इंक। OMR शीट वो रिकॉग्नाइज करता है प्री, जो भी आपके शीट में मार्क्ड होगा विथ पेन और पेंसिल, इट विल रीड। Special pre-printed form are designed with the boxes that can be marked with a pencil or ink. Next is smart card reader. A smart card is embedded with microprocessor that can hold a certain amount of personal data in its memory. The special reader machine that is used to read this microprocessor is known as smart card reader. स्मार्ट कार्ड रीडर जब आप अपने स्मार्ट कार्ड को उसमें डालते हो तो उससे रिलेटेड आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो रीड कर लेता है थ्रू द माइक्रो प्रोसेसर जो उसमें होता है, एम्बेडेड होता है स्मार्ट कार्ड रीडर में। मीन्स आपका अकाउंट डिटेल्स, बैलेंस, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारा डिटेल्स ये रीड करके तब जाकर आपके जो भी अकाउंट होगा उससे डिडक्शन करता है। बार कार्ड रीडर, ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, दिस इज बार कार्ड रीडर, इट इज ऑल्सो
input device which is used to input barcode from the reader. A barcode is collection of sequence of lines of different heights, okay, and width that are printed on various type of product. The machine that reads this barcode is known as barcode reader. आप definition अपने आप से कर सकते हैं. Next is biometric sensor. What is biometric sensor? जैसे आप जनरली ये जहाँ पे एम्प्लॉय के लिए होता है, जैसे हमारे स्कूल में भी आप देखे होंगे एक मशीन लगा है जिसमें थंब के थ्रू बायोमेट्रिक होता है, या आई का जो रेटिना होता है ना, उससे वो रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है. इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू uniquely identify a person on the basis of his physical or behavior trends. Biometric sensor can scan human characteristics such as eyes, fingerprints, and DNA with the help of sensor. Okay, it is commonly used in mark attendance or employees, student in organization or institution. Okay, next is टच स्क्रीन. ये तो टच स्क्रीन आपके फोन में भी होता है, आजकल लैपटॉप वगैरह में भी आ रहे हैं टच स्क्रीन. तो वो क्या करता है, आपके फिंगर को सेंस करता है. इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन विच अलाउज इंटरेक्शन विथ कंप्यूटर थ्रू अ टच सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल कवरिंग द इंटायर स्क्रीन विदाउट एनी इंटरमीडिएट डिवाइस. ठीक है, किसी इंटरमीडिएट डिवाइस के बिना ये डायरेक्टली उसको एक्सेस कर देता है. द टच स्क्रीन यूजेस अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द यूजर टू टच द स्क्रीन विद देयर फिंगर्स टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज वेब कैमरा. वेब कैमरा कैसे इनपुट डिवाइस हुआ बेटा? क्योंकि वो क्या करता है, वो इनपुट करता है जो भी उसको व्यूज नजर आता है. सपोज वेब कैम के थ्रू आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो वो तो इनपुट कर रहा है ना. क्या इनपुट कर रहा है? जो भी व्यू आ रहा है उसके सामने, और वो मॉनिटर पे उसको डिस्प्ले कर रहा है, तो वो इनपुट कर रहा है. देन इट इज डिस्प्लेइंग ऑन द मॉनिटर. सो इट इज अ इनपुट device also. A webcam is a camera that is connected to a computer. It is captures still pictures as well as video, and with the help of software can be transmit them in the real time. Unlike a digital camera and digital camcorder, a webcam does not have any built-in storage. Okay. Instead, it always uses the computer hard drive as its storage. Okay, it always uses the computer hard drive as its storage, because it haven't any storage device, so it will always use your computer internal hard disk. Okay. These are the input device we discussed. First is keyboard, mouse, light pen, optical mark reader, smart card reader, barcode reader, biometric sensor, touch screen, web camera. Okay. Next, so the components of computer are, first one is input unit. This is clear now. Now we will start CPU. CPU, the full form of CPU is beta Central Processing Unit. CPU is also called brain of computer. Okay, because वो एक brain है ना, हमारा जैसे brain है, वो brain ही सब कुछ, जैसे आप कुछ भी सोचते हो है ना, with the help of brain. वैसे कंप्यूटर जो भी आपने जो भी इनपुट करा है उसके साथ जो भी काम करना है, प्रोसेस करना है, सेव करना है, तो उसमें कंप्यूटर का ऑब्वियसली ब्रेन लगता है. और वो ब्रेन कौन है?
CPU. CPU is also called brain of the computer. It is also known as processor. Okay, it is responsible for carrying out all the activities in a computer. It is further divided into three parts. Okay, तो ये जो कंप्यूटर का ब्रेन है ना, वो फिर से थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द वर्क. First one is control unit, that is CU. This unit is responsible for follow, flow of data and instruction between different unit of computer. तो what is CU? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. जो भी डेटा होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर. It decides whether data should go to ALU, register memory unit, secondary storage or output unit. Okay, so CU will always decide where the data instruction will go, whether ALU or registers, memory unit or secondary storage or output unit. According to input, it will decide. ओके, नेक्स्ट इज एएलयू. तो अभी मैंने डिस्कस किया था एएलयू. एएलयू इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो वो किस टाइप का ब्रेन काम करेगा? ये ब्रेन काम करेगा एएलयू. दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन. ओके, नेक्स्ट इज रजिस्टर. अब सीयू डिसाइड करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके पास आ रहा है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन करेगा, कहाँ पे जाएगा. तो जो आपका सपोज मैथमेटिकल रिलेटेड हो गया वो एलयू के पास आ गया. रजिस्टर के पास भी जाता है. चलो हम देख लेते हैं रजिस्टर के पास क्या आएगा. दे आर मेमोरी सेल्स इनसाइड सीपीयू टू स्टोर डेटा टेम्पररली. दे आर मेनली यूज्ड टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा. ओके, तो ये जो हमारा रजिस्टर होता है वो क्या करता है? टेम्पोररी यूज, जो शॉर्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं. जैसे हमने सपोज कुछ कॉपी किया है ना, किसी पिक्चर को कॉपी किया कहीं पेस्ट करने के लिए, तो रजिस्टर उसको टेम्पोरली टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है. लॉन्ग टाइम के लिए रजिस्टर यूज नहीं होता. क्लियर है? फ्रीक्वेंटली जिसको यूज करना है. ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट. तो अभी हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कर रहे थे. फर्स्ट टाइप वाज इनपुट यूनिट which we are covered. Okay, we covered, sorry. CPU, we already covered it. Next is memory unit. Now we will start memory unit. Memory unit is used to store data and instructions. Okay, it stores data in machine language, that is in the form of 0 and 1. The binary digits 0 and 1 are known as bits. Okay, तो मेमोरी यूनिट किस लिए यूज होता है? टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. इट स्टोर डेटा इन मशीन लैंग्वेज. बट ये क्योंकि कंप्यूटर है वो आपके लैंग्वेज में डेटा स्टोर नहीं करता है. अभी आपको क्लास 11 में सपोज पाइथन करना है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग जो करते हो, ये मत आप समझना कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर को समझ में आता है. कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है ना. कंप्यूटर को समझाने के लिए वो लैंग्वेज कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू. ओके, तो इट स्टोर्स द डेटा इन मशीन लैंग्वेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. और 0 1 जो होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, जिसको हम लोग बिट्स बोलते हैं. दिस यूनिट इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी मेमोरी. It consists of 3 parts. तो ये मेमोरी यूनिट जो है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी में बोलते हैं और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सेकेंड वन इज रीड ओनली मेमोरी, रोम. एंड लास्ट वन इज कैश मेमोरी. ओके, तो व्हाट इज रैम? इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस temporarily. Okay,
तो रैम जो है वो स्टोर करता है डेटा को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को टेम्पोरली, परमानेंटली नहीं। इट रिटेन्स डेटा इन इट एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। जब पावर ऑन है ये डेटा स्टोर करेंगे, जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा ये डेटा को हटा देता है, बिकॉज इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर टेम्पररी ओनली। All the contents of RAM get cleared if power supply is turned off. Whenever a software is open, it automatically gets open in RAM. जो भी सॉफ्टवेयर सपोज मैंने अभी पावर पॉइंट ओपन किया तो वो किसके कौन सी मेमोरी में होगा, हमारे रैम में। ओके, तो रैम के दो टाइप हैं, टू टाइप्स ऑफ रैम आर डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। Dynamic RAM, it consists of capacitors and transistors. Dynamic RAM में दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है और कैपेसिटर्स होता है। It uses electric charge to store the data. और next is static RAM. It consists of flip-flops. Okay, it stores data in binary form. They have faster access time compared to the dynamic RAM. Okay, second part of main memory unit is ROM, read only memory. ROM stands for read only memory. Data is permanently stored in ROM. ROM contains instructions need to start up the computer and load operating system into RAM. तो RAM में क्या करता है, जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो वो उसमें स्टोर करके रखता है ना। जो ओपन हो रहा है तो वो कहाँ पे उसके रिकॉर्ड को रखा है, रैम में। और रोम जो है जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो वो थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथली ऑन होता है। तो रोम में वो क्या करता है, लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रोम is of three types. First is EROM, PROM, sorry, programmable read-only memory. It can be programmed once. EPROM, erasable programmable read-only memory. It can be erased by keeping ROM chip using ultraviolet light. It can be reprogrammed. इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम फॉर वंस ओनली, बट EPROM जो है दैट कैन बी reprogrammed. Last one is EEPROM, electrically erasable read-only memory. It can be erased by electrical signal. It can be reprogrammed. इसको भी हम लोग reprogram कर सकते हैं। Last type of memory is cache memory. Whose type of this memory unit? RAM कर लिया हमने, ROM कर लिया, last one is cache memory. It is spatial memory used to compensate the speed difference between CPU and RAM. Okay? तो CPU बहुत फास्ट काम करता है और RAM स्लो काम करता है। It stores the copies of frequently used data from RAM. Hence, it reduces the time required to access data from primary memory. Okay? So, we have completed input unit, CPU, memory unit. Now, we will discuss secondary storage. What is secondary storage unit? पेन ड्राइव, CD, ये सारे क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी क्या होता है, जो भी आप लैपटॉप में आप जो भी डेटा सेव कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ और यूज फर्दर नहीं करना है, सो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। बट सेकेंडरी मेमोरी मीन्स आपको सेकेंडरी कुछ चाहिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD। Okay, secondary storage unit is used to store data permanently.
It consists of different type of storage device. Most commonly used storage devices are hard disk. It is most commonly used storage device to store data on computer. It consists of multiple magnetic plates and heads to read and write data. Okay, it consists of multiple magnetic plates, okay, for writing the data. Magnetic plates are further divided into track and sectors. तो हमारा हार्ड डिस्क होता है, उसमें फिर से मैग्नेटिक प्लेट जो होते हैं उसमें फर्दर डिवीजन होता है ट्रैक एंड सेक्टर्स का. मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज 15 TB. अभी तक 15 TB का, फिर वो आगे अपडेट होता रहता है. ओके, नेक्स्ट इज CD. Full form of CD is compact disc. CD is an optical disc to store data. CDs having CD have a storage capacity of 700 MB. CD सपोज मैंने आपको क्लास 12 में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने को बोला, तो वो तो प्रोजेक्ट कितने हैं, वो 1 GB का भी नहीं जाता, वो तो 500 MB तक भी नहीं जाने वाला. तो आप CD में सबमिट कर सकते हो, है ना, बिकॉज इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. 3 टाइप्स ऑफ CD आर CD-ROM. कॉम्पैक्ट CD फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मैंने कराया है क्या, रीड ओनली मेमोरी. दीज आर प्री रिकॉर्डेड CDs provided by manufacturer. For example, CDs containing software, games, ebook, etc. जैसे बुक्स वगैरह लेते हो तो उसमें पहले से CDs आती है ना. गेम्स की CD अपनी होती है, सॉफ्टवेयर की जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आते हैं उसकी अपनी CDs होती है. तो that is called CD-ROM. Next is CDR, compact disc recordable. Data can be recorded on this CD only for once. मतलब जैसे आपने CD में एक CD ब्लैंक CD लिया और उसमें आपने सपोज प्रोजेक्ट आपने उसमें रिकॉर्ड कर लिया, तो वो एक बार ही जो आपने डाल दिया उसको आप रिमूव नहीं कर सकते. CDR. Next is CD-RW, compact disc rewritable. This type of CD can be erased and recorded multiple times. आप उसके कंटेंट को इरेज कर सकते हो, फिर से रिकॉर्ड कर सकते हो. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD. तो ये 3 टाइप्स ऑफ CD था. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. फर्स्ट वाज हार्ड डिस्क, second was compact disk, and third storage device is digital versatile disk, that means DVD. Obviously ये CD के कंपेयर में ये जैसे CDs 700 MB of data maximum को स्टोर कर सकता है, but DVD can store more than CD. Okay, it can store up to 17 GB data. DVD is an optical disc to store data. DVDs have a storage capacity of up to 17 GB. There are 3 types of DVDs. DVD-ROM and digital versatile disc read-only memory. These is pre-recorded, provided by the manufacturer, same as CD-ROM, or this is DVD-ROM. CD-ROM was also provided by the manufacturer and DVD-ROM is also provided by the manufacturer. Same, but memory जो आप compare करोगे as compared to CD, DVD have more capacity. Next is DVD-R, मतलब digital versatile disc recordable, same as CD-R. It can record data for once only, and DVD-R can also store data for once only. It cannot be removed from DVD-R. Next is obviously DVD-RW. Okay, digital versatile disc rewritable. These type of DVDs can erased and recorded
मल्टीपल टाइम। ओके, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो ये वी हैव कंप्लीटेड द, अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, सेकेंडरी मेमोरी। सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी भी हमने कंप्लीट नहीं किया है। अभी हमने सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसके टाइप्स कर रहे थे हम। नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के टाइप है। ब्लू रे डिस्क इज a high capacity optical disc medium developed for recording, rewriting and playing back high definition videos. Okay, it can store large amount of data and was designed to use data for high definition. Okay, and they can store up to 128 GB of data. Last one is pen drive. You all know about the, I think, pen drive. Okay, this is also called flash memory. It is a solid state memory that can store more than 128 GB of data. Okay, तो सबसे ज़्यादा मेमोरी किसका हो गया, मेमोरी जो था हार्ड डिस्क। ओके, उसके बाद हमारा आता है पेन ड्राइव का और ब्लू रे डिस्क का। सीडी स्मॉलर डेटा स्टोर कराने के लिए, फिर देन डीवीडी। Okay, these are the types of secondary storage device. Now the types of components of computer, we have completed input unit, CPU, memory unit, secondary storage. Now we will start last topic, output unit. What is the output unit of computer? Everybody knows the screen. Screen is the output device. Okay, and many more output devices are available. If you think, you can easily say printer is also output device. Okay, this unit is used to get output from computer. This unit converts machine language to human understanding. First step क्या था हमारा, फर्स्ट जो था इनपुट डिवाइस, वो जब सीपीयू के पास जा रहा था, डेट कन्वर्ट्स ऑल डेटा इन बाइनरी फॉर्म। अब वो बाइनरी फॉर्म से वापस आपके पास आ रहा है, तो आपको बाइनरी फॉर्म में तो समझ नहीं आने वाला। सो ये यूनिट जो होता है, गेट आउटपुट इन कंप्यूटर एंड कन्वर्ट द मशीन लैंग्वेज विच आर कमिंग फ्रॉम सीपीयू into convert the machine code into human understandable form. Most commonly used output devices are monitor and printer. Monitor, it is used to display data just like TV screen, and printer, it can be used to take printout of data stored on computer. Okay, we have completed all components of computer. Okay, thank you. Thank you so much all of you for watching my videos. Thank you all.